Namaste everyone and welcome to yet another set where we are covering all the 114 sets that have ever appeared since CAT 2017. This is a set from CAT 22 slot 3 and interestingly this is one of those rare few sets जहां पर CAT authorities की तरफ से ambiguous question set में आ गया था. So this gives us a lot of opportunities to learn, unlearn and relearn some very interesting things that can happen possibly when we appear or attempt any CAT from here on in. So CAT 22 slot 3 का एक interesting set. Stay till the end. There are some very interesting learnings that we are going to have via this set. Let's quickly apply our fate framework to decide whether this particular set should have been picked or not. So in terms of familiarity, जैसे ही आप ये चार्ट देखोगे, this is not a standard chart. मतलब आपको blue और pink दो अलग अलग कलर्स के horizontal bar graphs दिख रहे हैं. So horizontal bar graph is something that we are familiar with, but age का ऐसा frequency distribution, 4 different charts. I'll be very honest, when I saw this set in actual CAT 22 slot 3, I left it. मैंने skip कर दिया था, although by that time I did not use fate framework that I teach now, but तब भी I felt that this is not something that I am very familiar with, so I skipped this particular set. So familiarity wise I'll say that this set is definitely not on familiar lines. Familiarity में तो हम cross लगा दें. In terms of ambiguity of clues, which was in the following a year corresponds to 1st of January. A study to determine the mortality rate of the disease began in 1980. The study chose 1000 males, 1000 females, followed them for 40 years or until they died, whichever came first. तो ऐसा कुछ straightforward difficult तो नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा, but it was just weird. I mean, in the exam pressure, it was weird to understand this much. It was overwhelming, if I can use that word rather than weird. So overwhelming तो definitely था. Ambiguity I'll say कि नहीं है. Ambiguity is in our favor. Time consumption. There were 5 questions following this set. 2 were TETA, 3 were MCQ and कुछ maxima minima नहीं है. तो time, because data बहुत सारा है, I felt कि there is a question mark. Don't know whether this set should have been done or not. Extra info in questions नहीं है, so this is definitely in our favor. Based on this, again this becomes a third set or a fourth set that we might pick. Definitely not one of those sets जिसमें चारों पे टिक आए. अगर आपको लग रहा है कि ये डेटा रीड करना इजी है, सो मे बी यू कैन अप्लाई अ टिक ऑन फेमिलियरिटी वाला पार्ट दैट दिस इज प्रीटी रीडेबल. तो आप FAE 3 पे टिक आ जाएंगे. देन दिस माइट बी योर सेकंड सेट टू पिक. टाइम कंजम्पशन का आइडिया नहीं है. When you will eventually solve, there is a good chance that you might say, sir, extremely easy set, very very easy set. सारे क्वेश्चंस बड़ी कन्वीनियंटली बन जाएंगे एक्सेप्ट दैट वन क्वेश्चन दैट CAT authorities accepted that was wrong. मतलब उन्होंने बहुत डायरेक्टली तो एक्सेप्ट नहीं करा, उन्होंने जो डिस्क्लेमर दिया उसमें बोला कि एम्बिग्विटी थी इसलिए दे आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द स्कोर्स. अच्छा, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नॉट कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन? उसके मार्क तो आपको नहीं मिलेंगे. मतलब आपका सही गया है गलत गया कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो क्वेश्चन इवैल्यूएशन में से हट गया. इमेजिन करेंगे वो कि क्वेश्चन एग्जाम में था ही नहीं, 3 नंबर 3 मार्क्स डायरेक्टली कम हो गए ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स में से. एक तरीका ये होता है. दूसरा होता है कि CAT authorities decided to give pro rata marks for those 3 marks का क्वेश्चन on the basis of what you have scored earlier. मतलब इमेजिन बचे हुए पेपर में आपका 50% स्कोर है, तो वो जो क्वेश्चन जिसको डिस्कार्ड करा है उसका 3 मार्क है, आपको 1.5 मार्क 1.5 मार्क मिल जाएगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रो रेटा बेसिस. तो प्रो रेटा बेसिस पे CAT 22 slot 3 में CAT authorities decided to give marks like this. We'll look at that question and this was the question 3, died between the ages of 50 and 60. We'll come back to that. अभी के लिए ये सेट अगर आपको डेटा रीड करने में कोई दिक्कत नहीं लग रही है तो then you could have picked this as a second or third set, or then once you have tried it, then you can share your feedback in comments. How did you find this set? Let's understand what does this typical 2 paragraphs की information mean and then we'll take up questions one by one in detail. तो एक एक करके आराम से समझते हैं what is this particular set all about. So it says in the following a year corresponds to 1st of January of that year. तो जो भी ईयर का रेफरेंस है वो 1st जनवरी का रेफरेंस है. अ स्टडी टू डिटरमाइन द मोर्टेलिटी रेट फॉर अ डिसीज बिगैन इन 1980. तो 1980 में उन्होंने कोई पर्टिकुलर स्टडी स्टार्ट करी. द स्टडी चोज 1000 मेल्स एंड 1000 फीमेल्स एंड फॉलोड देम फॉर 40 इयर्स और अंटिल दे डाइड व्हिचएवर केम फर्स्ट. तो 40 साल तक 1000 मेल्स 1000 फीमेल्स को ट्रैक कराए. कब तक? जब तक वो 2010 का टाइम 2010 का टाइम नहीं आ जाता. फॉर 40 इयर्स 2000 इनफैक्ट 20 तक 2020 तक का 1980 से 2020 40 साल तक ट्रैक कराए. अगर उनमें से किसी की पहले डेथ हो गई तो ऑब्वियसली उसके बाद तो उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे. सो विच एवर केम फर्स्ट.
The 1000 males chosen in 1980 consisted of 250 each of ages 10 to 20, 20 to less than 30, 30 to less than 40 and 40 to less than 50. तो हमारे जो एज ब्रैकेट्स हैं वो चार एज ब्रैकेट्स हैं, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. These are the four age brackets और इस हर एक में 250 लोग हैं, 250, 250, 250, 250, 250 for 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 50 to 40 to 50. The 1000 females chosen in 1980 also consisted of 250 each of ages 10 to 20, 20 to less than 30, 30 to less than 40 and 40 to less than 50. तो यही सेम ब्रेकअप 250 each for each of the four categories ये given है. The four figures below, तो ये जो चार ग्राफ्स आपको दिख रहे हैं ये क्या बता रहे हैं? Depict the age profile of those among the 2000 individuals who were still alive in 1990, 2000, 2010, 2020, which would mean what? अब अगर मैं इस पार्ट को जूम करके बताऊं कि इस ग्राफ का मतलब क्या होगा, तो 20 to 30 एज इन 1990 अगर आप इसे ध्यान से देखें तो मेल्स के लिए इट इज ब्लू कलर, फीमेल्स के लिए इट इज पिंक कलर दैट दे हैव मेंशन्ड इन सेकंड पैराग्राफ. 20 to 30 में 230 पीपल आर अलाइव इन 1990. इमेजिन 10 साल पहले 1980 में 10 से 20 साल वाली एज के कितने लोग रिक्रूट करे थे उन्होंने स्टडी के लिए? 250. सो आइडियली अगर सब लोग जिंदा रहते तो वो 20 से 30 की एज में पहुंच जाते. जो 10 साल पहले 10 से 20 की एज में, रिमेंबर आई एम रिपीटिंग दिस पार्ट, 10 years ago if somebody was in the age bracket of 10 to 20 years, what will happen to them 10 years later? वो 10 to 20 से किस ब्रैकेट में चले जाएंगे? 20 to 30. तो 20 to 30 मेल्स 250 होने चाहिए थे पर वो बचे 230, मतलब 20 पीपल डाइड इन बिटवीन. 250 में से 20 पीपल डाइड. कौन से टाइम पीरियड में? 1980 से लेकर 1990 के बीच में. 1 जनवरी 1990 को जब स्नैपशॉट देखा तो यू रियलाइज कि ये नंबर 230 बचा है, 20 लोग गुजर गए. फीमेल्स में क्या हुआ है? 240 हुआ है, मतलब 10 फीमेल्स गुजर गई. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, देयरफॉर if there are people who are belonging to the age bracket 20 to 30 in males, for example is 230, can I say 2000 वाला जब स्नैपशॉट देखोगे तो यही 20 to 30 में से लोग 30 to 40 में चले जाएंगे और 20 to 30 एक भी नहीं बचेगा क्योंकि वही 250 लोगों का प्रोग्रेशन है, लाइफ का प्रोग्रेशन है. तो ये 230 लोगों में से 180 पीपल बिकेम इन द एज ब्रैकेट ऑफ 30 to 40, विच वुड मीन व्हाट? जो लोग 20 से 30 साल की उम्र के थे वो 230 लोग थे. अब 10 साल बाद क्या होगा? आइडियली अगर ये सब लोग जिंदा रहे तो ये नंबर जो यहां 180 दिख रहा है, दिस नंबर शुड हैव बीन 230, पर 230 की जगह कितना बचा है? 180. तो 10 साल बाद उनके एज 10 साल से बढ़ के 30 से 40 के ब्रैकेट में आने वाले 230 होने चाहिए थे, अब बचे हैं 180, मतलब 50 लोगों की मृत्यु हो गई. दे डाइड. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड द डेटा फॉर एवरी सक्सेशन इन 1990 से 2000. तो आप एक स्लैब नीचे आ जाओगे. जो स्लैब 2030 का यहां है, अगली बार वो 3040 का बन जाएगा. जो यहां 3040 का स्लैब है वो स्लैब यहां 4050 का बन जाएगा. जो स्लैब यहां 4050 का है वो स्लैब यहां 5060 का बन जाएगा इन 2020. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. इफ दिस इज क्लियर देन वी are in a good position to attempt the questions. That is the information given in the second paragraph. Let's now move to questions one by one. So question number 1 में डेटा क्या दिया है वो देख लेते हैं. How many individuals who are being tracked and who were less than 30 years of age? Less than 30 years of age का मतलब 10 से 20 साल वाले भी हो सकते हैं, 20 से 30 साल वाले भी हो सकते हैं. तो 2 एज ग्रुप्स. इन 1980 1980 में ये पहले 2 ग्रुप्स की बात कर रहा है. सर्वाइव्ड अंटिल 2020, 2020 तक सर्वाइव करे. तो कैन आई से इसे ऐसे विजुअलाइज कर लें कि 1990 में जो लोग 30 साल से छोटे थे 1980 में, वो 1990 में क्या होंगे? 10 to 20 का नंबर बनेगा, 20 to 30. तो कैन आई से ये वाले ग्रुप की हम बात कर रहे हैं. दिस इज द ग्रुप विच इन 1980 वॉज लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज. 1980 में लेस देन 30 था. तो 1980 में लेस देन 30 था तो 1990 में 10 साल बाद लेस देन 40 हो जाएगा. लेस देन 40 मतलब 20 to 30 पे चलेगा और 30 to 40 पे चलेगा. अब ये वाला जो ग्रुप है ये आगे जाकर कौन सा ग्रुप बनेगा? 2000 में एक ग्रुप बनेगा 30-40 और 40-50 वाला. आई होप यू रिमेंबर दिस बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपको स्लैब एक एक शिफ्ट करते जाना है नीचे की तरफ. 30-40, 30 से 50 वाली एज ग्रुप हो गई. अगले 10 साल बाद जाओगे तो ये 40 से 60 वाला ग्रुप बनेगा
और उसके आगे जाओगे तो ये 40 से 60 की जगह ये 50 से 70 बनेगा. So this is the age group that we are talking of, and this is the total that they want. How many individuals who are being tracked survived till 2020? तो इन चार नंबर्स का टोटल कर देना है. 125 plus 105 will be what? 230. 230 and 100, 330. 330 and 40, 370 और 100, 470. Correct answer will be choice A, 470. I hope this part is clear. कि आपको ये चार वैल्यूज का मेल फीमेल फॉर द एज ग्रुप रेंजिंग बिटवीन 50 to 70. डायरेक्टली भी सोच सकते थे, ये सब समझाने के लिए करा है. अगर लेस देन 30 है 1980 में और आप 2020 में जा रहे हो, मतलब 40 साल बढ़ा लोगे, तो 40 साल मतलब 30 से 40 साल आगे बढ़ाओ, लेस देन 70. लेस देन 70 कहां से स्टार्ट करके? 50 से स्टार्ट करके. ऊपर का डेटा तो जीरो आना ही है, तो लेस देन 70 में जितनी वैल्यूज दिख रही है ये डायरेक्टली ट्रैक करके आप टोटल कर सकते थे. दैट इज द ऑल्टरनेट वे. I hope this part is clear. So question 1 answer 470. Let's move to the next part. Question number 2. How many of the males who were being tracked and who were between 20 and 30 years of age in 1980? जो 20-30 के एज ब्रैकेट में थे 1980 में, वो 1990 में कौन सी एज ब्रैकेट के आएंगे? 30 से 40. सो मैं हाईलाइट कर लूं, 30 से 40 मेल्स, इनकी हम बात कर रहे हैं, विच इज 235. ये बोल रहे हैं डाइड इन द पीरियड 2000 टू 2010, 2000 से 2010 के बीच में डाई कर गए. तो ये 30 टू 40 एज के हैं 1990 में, तो अगली बार दे विल गो वन स्लैब डाउन, वो 40 से 50 वाले ब्रैकेट में आ जाएगी, विच इज 205. और उसके आगे अगर हम जाएं तो 50 टू 60 वाले ब्रैकेट में जाएंगे, विच इज 165. तो अब सोच के देखो, 2000 में 205 लोग थे, तो और 2010 में 165 ही बचे. तो कहना है से जो कम हो गए, दीज आर द पीपल हु डाइड, विच इज व्हाट दे आर आस्किंग. एंड डाइड बिटवीन विच पीरियड? 2000 से 2010, क्योंकि ये स्नैपशॉट 1 जनवरी का है. दिस इज Jan 1 2010. तो Jan 1 2010 के पहले वाले स्लॉट में इतने लोग थे हमारे पास, 205. 2000 में 1 जनवरी 2000 को 205 लोग थे, 205 में से अब 165 ही बचे हैं. तो मतलब कितने लोगों की डेथ हो गई? 205 माइनस 165, विच इज व्हाट, मैं लिख देता हूं, 205 माइनस 165, विच इज हाउ मच? 40. तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन डेफिनेटली विल देन बी 40. मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी फीमेल्स हु वर बीइंग ट्रैक्ड एंड हु वर बिटवीन 20 and 30 इयर्स ऑफ एज इन 1980? तो फिर से हमारा वही स्ट्रक्चर फॉलो कर लेते हैं. 20 और 30 की एज के थे 1980 में. 1980 में 20-30 की एज की फीमेल थी, तो 1990 में वो 30 से 40 जाएंगी. 1990 में 30 से 40. अगली बार 40 टू 50 ये फीमेल्स, फिर अगली बार 50 टू 60 दीज फीमेल्स, फिर उसके अगली बार 60 टू 70 ये फीमेल्स. इन का प्रोग्रेशन की हम बात करें, ऐसे लोग फीमेल्स जो 30 से 40 इयर्स के एज के थे on 1st of January 1990, in how many of the females who were being tracked and who were between 20 and 30 years of age in 1980 died between the ages of 50 and 60? 50 से 60 की उम्र में इनकी डेथ हो गई. तो पहले ये चेक करते हैं, 40 से 50 की एज वाले 175 फीमेल्स थी. आगे जाकर 50 से 60 एज वाली 145 फीमेल्स थी. तो 50 से 60 एज पहुंची इनकी, ये 145 लोग थे 1 जनवरी को. अब जो डेथ होनी है वो इन्हीं में से होनी है, और वो 60 से 70 की एज के जाएंगे. तो एट बेस्ट वी कैन से कि 145 में से 105, इफ आई इरेज दिस पार्ट, 105 ये नंबर 140 में से ये 40 लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है. कौन से पीरियड में? 2010 से लेकर 2020 तक. अब ये तो पता है कि 2010 से 2020 तक 40 लोगों की डेथ हो गई है, बट क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है. क्वेश्चन ने पूछा है डाइड बिटवीन द एजेस ऑफ 50 एंड 60. तो ये कैसे पता कि 50 से 60 साल की एज के बीच में ही उनकी डेथ हो गई? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अगर मैं किसी की एज 59 ईयर्स ले लू, यहां पर अगर मैं किसी की एज 59 ईयर्स ले लू इन 145 में से, तो ये लोग 2010 में 59 ईयर्स के थे. 2020 तक ये 105 वाली कैटेगरी में जा ही नहीं पाएंगे. देयर इज अ चांस कि 2 साल बाद 2012 में 61 ईयर्स की एज में डेथ हो जाए. तो फिर हम ये जो 40 लोग कम हुए हैं उनमें से एक पर्सन वो भी काउंट कर रहे हैं,
जो 61 ईयर्स की एज में डेथ हो गई थी 2010 में, पर उसकी एज 50 और 60 के बीच में ही डाई हुई. सो मतलब दिस पर्सन शुड हैव बीन काउंटेड व्हिच वी आर नॉट काउंटिंग अदरवाइज. Therefore, the answer for this question typically will be cannot be determined. You really cannot tell कि exactly कितने लोगों की डेथ हुई. Possible answer could be कि what could be the maximum number. अगर मैक्सिमम बोले तो हम बोल सकते हैं सारे के सारे ही चले गए, सारे के सारे चले गए तो 40 मैक्सिमम नंबर हो सकता है. कैट में जब ये एक्चुअल क्वेश्चन आया तो उन्होंने पॉसिबल आंसर, पहली बार आंसर की आती है तो कैट अथॉरिटी इज ऑल्सो वेरी कॉशियस because there can be mistakes, so they share possible answer when they share the actual response sheet. जो आपने response करा है वो दिख जाता है और जो उनकी तरफ से possible answer है वो दिख जाता है. तो they shared a possible answer equal to 30 तो डेफिनेटली गलत है. अगर वर्स्ट टू वर्स्ट केस मैक्सिमम वाला सिनेरियो ले लें तो भी 40 आ सकता है. एंड दिस वाज द डिबेट देयर कि 40 आंसर है या 30 आंसर है या एक्चुअल आंसर शुड बी कैनॉट बी डिटरमाइंड. कैट अथॉरिटीज एक्सेप्टेड दैट देयर इज एम्बिग्विटी इन दिस क्वेश्चन एंड दे रिजेक्टेड द क्वेश्चन. तो कोई मतलब नहीं है इस पे और ज्यादा डिबेट डिस्कस करने की. अब इससे इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर अस, सर हम जब कैट देंगे हमारे पेपर में हमें अगर करते टाइम ये रियलाइज हो जाता है कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है या कुछ गड़बड़ लग रही है, तो द ओनली इंपॉर्टेंट मैसेज दैट शुड बी देयर इन योर हेड इज जस्ट क्विकली मूव ऑन, डू नॉट वेस्ट टाइम. अगर वो क्वेश्चन कभी गलती से गलत निकला तो आपका जो टाइम वेस्ट हुआ है उसके लिए कोई कॉम्पेंसेशन कैट नहीं देता है. यू कैनॉट आर्ग्यू इन कोर्ट सेइंग that I wasted 40 minutes on a question that you created was wrong, that is not my fault. ऐसा आप आर्ग्यू नहीं कर सकते कोर्ट में. कैट अथॉरिटीज आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं देंगी इस आर्ग्यूमेंट के लिए कि आप चेक कर लो मैं इस गलती के कारण ही अटका हुआ था और गलती कैट अथॉरिटीज की थी, तो दैट इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ माइन. ये ऐसा आर्ग्यूमेंट फेल हो जाएगा. कैट अथॉरिटीज कोर्ट नथिंग विल वर्क. यू जस्ट नीड टू एंश्योर दैट यू डू नॉट वेस्ट टाइम. भाई अगर दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, कैट अथॉरिटीज इस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर देंगी तब भी आपको जो आपके बचे हुए पेपर के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे प्रो रेटा पे मार्क्स मिलेंगे. अगर वो रिजेक्ट नहीं करती है, एक्सेप्ट कर लेती कि सही था, तो शायद हम कुछ गलत सोच रहे थे. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ईदर यू वर थिंकिंग समथिंग रॉन्ग, और कई बार हम इसी टेंशन में रहते हैं कि शायद मैंने कुछ गलत करा होगा, इसलिए हम और टाइम देते हैं. इन एनी विच वे प्लीज डू नॉट गिव एक्स्ट्रा टाइम. इफ यू फील देयर इज सम एम्बिग्विटी इन क्वेश्चन, आपका आंसर नहीं आ रहा है, एक ऑल्टरनेट तरीका ट्राई कर लिया, टीटा बेस्ड क्वेश्चन है वैसे भी, तो आप कुछ ना कुछ आंसर तो मार्क कर ही सकते हो. वेस्ट नहीं करना है टाइम. इफ यू फील 40 लगाने से लग रहा है 40 लगा दिया, आगे बढ़ गए. डोंट वरी टू मच कि डाइड बिटवीन 50 से 60 कैसे निकालेंगे. सर स्नैपशॉट्स दिए हैं 2. वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल हु डाइड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. तो जस्ट लीव इट एट दैट. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. How many people who were being tracked and who were between 30 and 40 years of age in 1980? 30 and 40 in 1980 मतलब कौन सा पार्ट आएगा? 40 and 50 वाला in 1990. 40 and 50 in 1990 मतलब ये वाला पार्ट. This is the data that we are talking of. और people बोल रहे हैं तो मतलब मेल फीमेल दोनों लेना है. Now they are saying survived until 2010. 2010 तक. ये 40 से 50 वाले हैं तो अगली बार 50 से 60, अगली बार 60 से 70. सो वी आर एसेंशियली टॉकिंग ऑफ दिस ग्रुप. यहाँ के 90, यहाँ के 100. करेक्ट आंसर इज चॉइस बी 190. नथिंग कैन गेट इजियर देन दिस. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज इन 2000 व्हाट वाज द रेशियो. 2000 के लिए स्नैपशॉट देखना है. व्हाट वाज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेड मेल्स. डेड मेल्स यहां से अलाइव वाले पता है, टोटल हमें पता है 1000 लोग थे, तो टोटल 1000 में से दिस अलाइव का पार्ट माइनस करेंगे तो विल गेट डेड मेल्स. इसका रेशियो निकालना है डेड फीमेल्स के साथ. शुड बी प्रीटी इजी. लेट्स क्विकली डू द कैलकुलेशन नाउ. सो आई एम सेइंग डेड के लिए पहले अलाइव का टोटल कर लेते हैं. सो अलाइव के टोटल के लिए दिस नंबर लेट्स क्विकली ऐड 180 और 160 इज 340. 340 एंड 100, 340 एंड 100 440, 440 और 5 445 और 200, 445 एंड 200 645. तो अलाइव वाले लोग हैं 645. तो 1000 में से माइनस कर दे. 1000 में से माइनस करेंगे सो दिस नंबर विल बी 355. दिस इज द नंबर फॉर डेड. सिमिलरली फीमेल्स पे जाते हैं तो आई क्विकली ऐड द वैल्यूज जो कि इजी है ऐड करना, विच इज 150 और 120 विच इज 270. 270 में 10 ऐड कर दिया 280, 280 में 200 ऐड कर दिया 480, 480 में 200 ऐड कर दो 680, 680 में से 25 माइनस कर दो क्योंकि 175 है. 680 में से पहले 20 माइनस कर दो, 20 माइनस करा 660, 5 और माइनस करा 655. 655 ये नंबर है. अब यहीं से क्लियरली दिख रहा है
इससे ये 10 ज्यादा है तो 1000 माइनस करोगे तो 10 कम आ जाएगा 345, अदरवाइज 1000 माइनस 655 कर लो, विच एवर वे यू मे वांट टू डू इट। इसका रेशियो लेना है 355 का रेशियो लेना है 345 के साथ। रिमेंबर हमने क्या करा है 1000 माइनस दिस नंबर, रिमेंबर 1000 माइनस दिस नंबर, तो ये नंबर आ गया हमारे पास और सिमिलरली ये नंबर आ गया। इसका रेशियो ले लें, 5 से कैंसिल करा, 5 7 जा और 1 जा, 5 6 जा 34, 5 9 जा 71:69. Correct answer for this question will be choice A. So very interesting set, some interesting learnings. Please do share your understanding in the comment section. If you have some confusion, I'll be happy to clarify it there. कैट ने रिजेक्ट कर दिया था वो क्वेश्चन 3, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है और इस तरह का सेट अगर आएगा तो जैसा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है फॉर सॉल्विंग ऑल द DI सेट्स दैट हैव एवर अपीयर्ड, generally the questions are pretty easy, doable, manageable. Please make sure that you are good in DI as well, ताकि अगर easy set आए तो आपके सारे questions correct हो जाएं. That's it from my side. I'll take a leave. Sure.